The river bed, commonly known as Diara land, is a basin or bank area or area between two or more streams of the river, which known as Khadar, Kachar, Doab, Daryari, Kochar, Nag, Kali, and Nadiyari. The term Diara has been derived from the word Diya, means earthen lamp. Conformity with the shape of Diya, the bowl-like system on the surface, situated between the natural cliffs on either side of the river, appear like small diyas. जैसे दिया का किनारा होता है, दो दिया का, आप किधर से भी देखिए. When the rain water gets accumulated in them during the rainy season. Diara land are extensively found in UP, Bihar, Assam, Rajasthan, and Odisha. The cucurbits grown in Banas River. Banas River कहाँ है? मध्य प्रदेश में है क्या? नहीं, राजस्थान में है. The cucurbits grown in Banas River bed in Tonk district of Rajasthan are well known for its sweetness and other quality attributes. तरबूज और खरबूज के लिए बनास रिवर उसके मिठास और जो अन्य गुणवत्ता वाले लक्षण हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है. जनरली द लैंड आर अवेलेबल फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड. मतलब इसमें जो जमीन की उपलब्धता होती है वह बहुत कम समय के लिए होती है. लैंडलेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आर यूज दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर द सीजनल वेजिटेबल. इसमें जो गरीब होते हैं, जो भूमिहीन होते हैं, छोटे किसान होते हैं, मध्यम किसान होते हैं, वह किसान जो है इसमें सीजनल वेजिटेबल को प्रायोरिटी दी जाती है. द रिवर बेड कल्टीवेशन ऑफ cucurbits is practiced along the river Yamuna, Ganga, Gomti, Sarju, and other rivers in Haryana, UP, and Bihar. Narmada, Tawa, and Tapti river in MP, and Maharashtra. In Maharashtra, Sabarmati, Panam, Vartak, and Orsung in Gujarat. Tungabhadra, Krishna, and Pennar river in Andhra Pradesh. Manimala river in Kerala. So these are the rivers which used for production of river bed cultivation or Diara cultivation in India, and by this type of cultivation farmer fetch or farmer got the high price of his own produce. The soil of river bed contains mostly sand and moisture is shipped from the adjacent river. क्योंकि इन नदियों में जो सिल्ट और नीचे की बालू होती है मोस्टली बलुई होती है. आफ्टर द मानसून सीजन the water from the river bed retreats back to its channel, leaving large area dry. These dry area of land are generally left
unused due to the answer due to unmanagement, conflicts of land ownership, मतलब जमीन के स्वामी में मतभेद होने, डिफिकल्ट एसेस, इसका मूल्यांकन जो है कठिन है, एंड लैक्स ऑफ ओवरऑल मोटिवेशन टू कल्टिवेट मार्जिनल लैंड. However, the land of river areas furnish a diversity of natural resources. Proper management of the river bed could contribute to income generation as well as to natural resource management. Minerals, forest, diversity, water, ecology and changing climate, and better disaster or risk management. Riverbed offer opportunity for the landless and land poor people for income generation and food security. Landless people are defined as individual having less than 0.13 hectare land, while land poor people are those individuals having between 0.13 to 0.3 हेक्टेयर लैंड. मतलब अब यह है, आप जान गए कि लैंड लीज किसको कहा जाएगा. लैंड लीज उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास जमीन 0.13 हेक्टेयर होती है या इससे कम होती है, जबकि लैंड पुअर पीपुल उन लोग को कहा जाता है जिनके पास 0.13 to 0.3 हेक्टेयर लैंड होता है. River bed farming can be used to increase household income and improve the food security of landless and economically poor people. ठीक है, मतलब कि इसका रिवर बेड कल्टीवेशन का प्रयोग क्यों इंक्रीज, क्या मतलब जो है, जो हाउस होल्ड, जो गृहिणी या लोग हैं, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए और फूड सिक्योरिटी को सुधारने के लिए जो है रिवर बेड, और वो भी लोग जो लैंड लेस हैं तो उनके इनकम को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है. द की रीजन्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द रिवर बेड प्रैक्टिस इज मेनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स, इम्प्रूव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, easy availability of river bed, access to transportation and markets. एडवांटेजेज ऑफ रिवर बेड कल्टीवेशन, इसके क्या लाभ हैं रिवर बेड कल्टीवेशन करने से, क्या क्या एडवांटेजेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेज होते हैं, इसको देखते हैं. देयर आर सेवरल एडवांटेजेज ऑफ रिवर बेड कल्टीवेशन विच इंक्लूड, बहुत से ऐसे लाभ हैं रिवर बेड कल्टीवेशन को जिनमें निम्न को जोड़ा गया है. हाई नेट रिटर्न पर यूनिट एरिया, ठीक, पर यूनिट एरिया में जो है बहुत अधिक इनकम की गुंजाइश होती है. अर्ली एंड हाई यील्ड, ठीक है, इसमें जो है एक तो फसल अगेती होती है और ज़्यादा उपज मिलती है. इजी इरिगेशन, सिंचाई में जो है सरलता होती है. लो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो है कम इन्वॉल्व, जो कास्ट आती है पर हेक्टेयर वह कम होती है. लेस मिनरल रिक्वायरमेंट ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, क्योंकि नदियां जब बह के आती हैं तो बहुत से ऐसे रिच ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अपने साथ बहा लाती हैं एक दूसरे स्थान से, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको कम न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता
होती है। लिमिटेड वीड ग्रोथ, इसमें जो खरपतवार की मात्रा होती है वह भी कम उगती है। इजी टू कंट्रोल द पेस्ट एंड डिजीज बाई कल्चरल मीन्स, यहाँ पर कीड़े घास कम होती है, मैक्सिमम एरिया बालू से ढका होता है, तो इजी टू कंट्रोल द पेस्ट एंड डिजीज बाय नेचुरल मीन्स। ठीक। लो कास्ट लेबर फैसिलिटीज, इसमें जो लेबर लगती है वह कम मूल्य की लगती है। नो लैंड ओनरशिप रिक्वायर्ड, इसमें किसी प्रकार के भू स्वामित्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाई इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ, ठीक, ये पुराना डेटा है। तो इसमें क्या है कि पर हेक्टेयर एरिया जो रिटर्न मिलता है वह बहुत अच्छा होता है, अधिक होता है। इनकम एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर, इस प्रकार की खेती को करके भूमिहीन एवं मध्यम किसान जो है अपने पोषण सुरक्षा का पूरा ध्यान रख सकते हैं। लोकल एडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, मतलब जो लोकल उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बेस पर इसे एडॉप्ट किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ दियारा लैंड, जो नदी सलहटी खेती है, रिवर बेड कल्टीवेशन है या दियारा लैंड कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, उसको निम्न प्रकार से क्लासिफाइड वर्गीकृत किया गया है। ठीक। लोअर दियारा लैंड, निचले दियारा लैंड, दिस टाइप दियारा आर लोकेटेड इन मेन रिवर बेड that have fine sands, courses and deposit on the surface and are available for cultivation of different crop and vegetables during non-monsoon season, November, December to May, June. Okay. Middle Diara land, Madhyam Diara land. This type Diara are located on the bank of rivers and width of such land vary as the area are frequently included undulated during rainy season by flooding water. The depth of flooding, however, varies considerably at different locations. Then upper Diara land. This type of Diara, those land which during the course of continuous deposition get elevation and other less and are less frequently flooded in comparison to the middle Diara land. मेजर क्रॉप सर। हेलो। हाँ सर, ये वाला टर्म थोड़ा कुछ नहीं हो पाया सर, कैसे डिफरेंशिएट किए हैं? अच्छा, ये लोअर दियारा, यस सर। लोअर मिडिल दियारा एंड अपर दियारा। देखिए, जो लोअर दियारा है, कह रहा ना कि दिस टाइप दियारा आर लोकेटेड इन मेन रिवर बेड, जो एकदम पेटी में जब पानी जाता है, जैसे आप गंगा जी में देखे होंगे कि गंगा जी में ही कुछ दियारा किनारे की तरफ ऊंचे होते हैं और जैसे जैसे आप पानी के पास जाएंगे वो निचली सतह में चले जाते हैं। आप 80 पे जो है उस पार गंगा की रेती में देख सकते हैं। जो मिडिल दियारा होते हैं ये नदियों के किनारे की तरफ, फोटो आगे है दिखाएंगे, है ना, फोटो आगे है, तो नदियों के किनारे की तरफ। और अपर दियारा मतलब जो कि एकदम उसके ऊपर होता है, जहाँ की बराबर
बाढ़ आने से सिल्ट जो है जमा हो जाते हैं, उस पर भी हम करते हैं। और ये जो है कि बाढ़ से कम प्रभावित होते हैं अपर दियारा लैंड जो है, ठीक है ना। जो लोअर दियारा लैंड होंगे वह बाढ़ से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित होते हैं। मतलब जो मेन सोर्स है रिवर का, जो एक पतली धारा बहती है मेन हाँ, स्ट्रीम, एक उसके जो गर्मी किनारे के एकदम दिनों में उसके, भी नहीं। हाँ एकदम हाँ, उसके किनारे। तो उससे डिस्टेंस के आधार पे इसको कैटेगराइज किए हैं क्या? हाँ 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 हाँ, अभी दिखाएंगे फोटो आपको तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। मेजर क्रॉप फॉर रिवर बेड फार्मिंग क्या क्या है? वाटरमेलन है। वाटरमेलन मतलब तरबूज की खरबूज। खरबूज। तरबूज सर। देखिए तरबूज है, खरबूज नहीं है, तरबूज है खरबूज। सर। हाँ, मस्क मेलन होता है। फिर बोतल गार्ड, लौकी, कुकुम्बर, खीरा, समर स्क्वाश, समर स्क्वाश, बिटर गार्ड, पंपकिन, पॉइंटेड गार्ड, परवल एंड स्पंज गार्ड, नेनुआ। Few farmers also grow chili, beans, tomato, cabbage and other high value vegetables on the riverbed. Time for riverbed cultivation. Cultivation on the common land in riverbed which are dry for one crop cycle approximately 6 months and accessible during the post-monsoon season, that is October to May. Important point for riverbed cultivation. Cucurbits are sown in the monsoon in the month of October and November. The trench are pit, जो गड्ढा या खाई, made at 2.5 to 4 meter spacing. Third, in northwest India, उत्तर पश्चिम भारत, where winter temperature in December January goes down 1 to 2 degrees centigrade. The protection is provided by planting of grass, stubble, probably a sacrum or sarkanda. सरकंडा सब लोग जानते होंगे। दिस प्रोटेक्शन हैज थ्री फोल्ड यूजेज, मतलब यह किन तीन सुरक्षा उपायों को दिखाते हैं। तो पहला, इट चेक द सैंड, ड्राफ्टिंग ऑन द डग अप ट्रेंचेज एंड कवरिंग द हिल सोन विद सैंड। यह क्या करता है, जो सरकंडा की दीवार है, अभी धूल उड़ती है तो देखते हैं बालू भी नदी में उड़ती है कि नहीं, तूफान आता है तो होती है। तो उससे यह क्या करता है कि रोकता है, और जब उससे रोकता है तो बालू जो है उस काट, मतलब जो छप्पर बनाया है उससे टकरा के रुक जाता है और बेल को नहीं ढकने पाता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट चिली विंड, ठंडी हवाओं को रोकने में सहायक होता है। प्रिवेंट द सैंड बीइंग ब्लोन ऑफ विथ द वाइन grown and cover the sand. Farmers are using their own produce seeds and use to cross pollination in cucurbits. Sometimes fruits coming from riverbed are of undependable quality. Fruits from riverbed cultivation are available 30 to 50 days before than the normal field sown crop. Hence the farmer gets very high price to their produce. रिवर बेड में जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम से खेती हम लोग करते हैं उससे करीब 30 से 50 दिन, करीब 1 से पौने 2 महीने तक जो है पहले उपज हमको मिल जाती है और उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। देखिए ये ट्रेंचेज है, ये देखिए
ये देखिए अब यहाँ पे ये गड्ढा खन के इसमें जो काला काला दिख रहा है ना, इसमें वो जो है गोबर की खाद डाला है और फिर ये नालियों में लगा रहा है एक। और ये ट्रेंच है, देखिए खाई है, यहाँ भी ये छप्पर ये लगाया हुआ है और इधर भी अभी छप्पर लगा देगा। तो क्या है कि जब इधर से हवा चलेगी तो यहाँ रुक जाएगी और जो इधर से हवा चलेगी उसको यह छप्पर रोकेगा। अब फायदा क्या होता है कि यह बेल जो है इस बालू से ढकने से बच जाती है। ठीक है, इस पिक्चर को देखिए आप। अच्छा हाँ, अपर लैंड देखिए, जो ये किनारा होता है एकदम किनारा, ये लोअर दियारा, इसके जो थोड़ा बीच में वो मिडिल, और जो ऊपर की तरफ होता है वो अपर दियारा कहलाता है। अपर दियारा में हम जनरली पानी को किसी पावर से कनेक्ट करके अपलिफ्ट करते हैं, जबकि लोअर दियारा में लोग मटके से ही पानी जो है इसके बगल में थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, वहाँ पानी निकल जाता है, फिर उसको जो है मैनुअली देते हैं। ये जो है देखिए ट्रेंच प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑफ सीड, ये ट्रेंच जो है बनाते हैं और इस तरह से इसमें सीड की जो है बुआई करते हैं। ये पूरा इस पार भी देखिए सर लगाए हैं, वही इसको टाट मतलब छप्पर बोलते हैं, तो इस छप्पर को लगाते हैं। यह देखिए आजकल क्या है कि किसान जो है दियारा लैंड में ये मल्च का प्रयोग जो है इसलिए कर रहा है कि कम पानी लगे और कम खरपतवार। अब इसमें देखिए वह पानी आपको मैं बताऊं कि कुछ किसान क्या करते हैं कि इसमें जो है यहाँ तक और इधर यहाँ तक पॉलीथीन बिछा देंगे, जो पॉलीथीन इसके ऊपर फ्लो करके बहेगा वो इनको खींचता रहता है। ये देखिए देखिए ये भी एक है जहाँ पर कि पानी और इसके बीच डिस्टेंस बहुत कम है, किनारे और पानी के बीच डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर भी कुकरविट हम बहुत आसानी से ग्रो कर लेते हैं। ये देखिए पलवार का यूज जो है किए हैं। बस इस पलवार का यूज करने से केवल एक फायदा यह है कि एक तो नमी संरक्षित रहती है और दूसरा जो बालू उड़ के जाता है ये पलवार में वह इकट्ठा होता रहता है, इन बेलों को नहीं ढक पाता है। इसीलिए आप देखे होंगे, देखिएगा या पूछिएगा कभी कभी कि आप दिन में कितनी बार इन बेलों को उलटते पलटते हैं, तो ग्रोवर आपको बताएगा, उत्पादक आपको बताएगा भैया 1 या 2 बार इसको हम बेलों को उलटते पलटते हैं। देखिए ये जो मैं कह रहा था कि मटके से वो लोग पानी लाके इसमें जो है सिंचाई करते हैं, देखिए, और ये डेली सिंचाई करते हैं, डेली। इसमें अभी क्या है कि कुछ किसान जो है डीजल पंप सेट वगैरह लगाते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ता है, वो लोग भी इसी तरह से सिंचाई करते हैं। देन वीडिंग इन रिवर बेड कल्टीवेशन जो है ये खरपतवार का निकालना, और यह देखिए देख रहा है ये स्क्वैश लगाया, क्वैश है जिसको हम लोग 56 कद्दू या बिलायती कद्दू कहते हैं, ये वो है। स्प्रेइंग, हाँ ये जो मैं बताया कि कहीं कहीं जो है पत्ता गोभी की खेती भी करते हैं, तो देखिए वहाँ पर स्प्रेइंग इन द रिवर बेड कल्टीवेशन। ऐसा नहीं कि हम रिवर बेड को कहें कि रिवर बेड जो है टोटली ऑर्गेनिक होता है और हमको कोई स्प्रे नहीं, जब फसल ही नहीं बचेगी तो हम तो इनिशियल स्टेज में फसल यदि बच जाती है तो बहुत अच्छा होता है।
ये पूरा देखिए, ये ये रिवर बेड ही है ये पूरा। अब यहाँ पर क्या है कि पानी एकदम जस्ट ये किनारे है, तो यहाँ से पानी अपलिफ्ट करते हैं पावर से, और ऊपर से उसकी सिंचाई करते आते हैं नीचे की तरफ, कि जो एक्सेस वाटर होगा वो पुनः इस रिवर में चला जाए। ये भी रिवर बेड का ही पिक्चर है, करेले की खेती है। कुछ रोग ये आ जाते हैं कुकरविट में, जैसे विल्टिंग वगैरह, तो हमें बराबर केयर रहना है और इन पे स्प्रे करते रहना है। ये देखिए वहीं पे अपना घर बना लेते हैं वाचिंग देखने के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि ये लोग इसी हैंडपंप को धीरे धीरे 2 लोग चलाएंगे, जिससे यही पानी यहाँ इकट्ठा होगा, फिर इसको ओवरफ्लो करके नीचे की तरफ जाता है और उस खेत को इरिगेट, उस चैनल को इरिगेट करते हैं। बहुत आसान नहीं है रिवर बेड कल्टीवेशन, थोड़ा टफ भी है, बार बार इसकी मॉनिटरिंग आवश्यक है। एंड देन द फ्रूटिंग ऑफ रिवर बेड प्रोड्यूस। ये देखिए ये रिवर बेड प्रोड्यूस निकलने लगा। हाँ, अब आप लोग इसमें रिवर बेड में कुछ पूछना हो तो पूछिए, अदरवाइज नई क्राफ्ट चालू करें। हेलो, यस सर। पूछिए एक तरफ से, कोई भी चीज पूछना हो। थियोरेटिकल अप्रोच तो कुछ क्लियर हो जाता है, बट एक्चुअली में रियलिटी क्या होता है वो तो फिगर देख कर या पढ़कर समझ में नहीं आता है। नहीं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताइए। चंपारण से। आप चंपारण किधर से होके जाते हैं, पटना से? नहीं नहीं, डायरेक्ट यहाँ क्या रूट है, बनारस का डायरेक्ट रूट है, मतलब पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी और उसके बाद यूपी। अच्छा, गोरखपुर होके? हाँ, मेन रूट तो वहीं है, बलिया। डायरेक्ट बनारस का भी रूट है। देखिए अब कभी आप आइए मई तक, समझे आप ना, बनारस में हैं, यस सर। तो गंगा उस पार जो है, कभी मौका मिले तो जाइए। एक बार फार्मर से जब बात आप करेंगे ना, वहाँ देखेंगे तो एकदम रियलिटी जो आप कह रहे हैं वो क्लियर होगी, है ना। अब इसमें आप क्या और जानना चाहते हैं, जो क्लियरिटी आप अपनी पिक्चर और जो मैंने बताया दोनों में मौजूद है, वह चीज बताइए तो मैं बताऊँ उसको। नहीं सर, ये वाला तो क्लियर हो गया है। और मंथ का यूज आए थे उसको कवर करने के लिए, सैंड से सेफ्टी के लिए, वो वाला थोड़ा सा टर्मिक पर बता दी। एक बार फिर बता दे। यस सर। पहले तो यह जानिए कि मल्च क्या होता है, हिंदी में मल्च को क्या कहते हैं, पता है कि नहीं? नो सर, बट पलवार, 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 ठीक है ना, पलवार। अच्छा, अब मल्च किसी भी जैविक या अजैविक मटेरियल को जमीन के ऊपरी सतह से बिछाना ही पलवार या मल्च कहलाता है। ये क्लियर हो गया ना? यस सर। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? तो जमीन पर यदि हम ऑर्गेनिक मल्च बिछा रहे हैं या कोई ट्रांसपेरेंट मल्च, जैसे आपका काली पॉलीथीन है, ठीक है,
हम बिछा रहे हैं जमीन के ऊपर, तो उससे क्या फायदा है, कुछ अब आप बताइए। मतलब वो क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। चलिए और रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट बताया कि मल्च इज रेगुलेट द सॉइल टेम्परेचर और बेड टेम्परेचर। हैं, गुड, बहुत अच्छा। दूसरा बताइए। और जो भी मतलब उस समय जो मतलब सिचुएशन होता है, जैसे तूफान वगैरह आता है तो या तेज हवा से उसको सुरक्षित रखता है। बेल को बचाता है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी लॉस नहीं होने देता है। दूसरा, नमी के स्तर को बनाए रखता है। यस। सॉइल टेम्परेचर मेंटेन करता है। खरपतवार नियंत्रण करता है। अब जब ये सब होगा तो निश्चित है क्या होगा, यील्ड कम होगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। कितने परसेंट बढ़ जाएगी? ये तो याद नहीं है। कम से कम बेटा 15 से 20 केजी पर बिस्वा, अरे पर प्लांट। इतना ज्यादा यील्ड मिलता है, इतना ज्यादा यील्ड मिलता है, ठीक है। ओके सर। और दूसरा, खरपतवार जो होते हैं उनको वहीं दबा देता है, मर जाते हैं, निकल नहीं पाते। अभी क्या है कि हर आदमी को जो है मल्च का यूज करना चाहिए। अब कोई आदमी पैडी स्ट्रास, देखिए अभी क्या है कि मेरा एक प्रोजेक्ट अभी मिला है, उसमें हमने ये लिखा है कि लोकली अवेलेबल मटेरियल। उसके लिए ऐसा नहीं कि वो पॉलीथीन फिल्म ले आए या गांव के टेंट हाउस से लाके 20 दिन टेंट लगाए, कुछ नहीं। हमने कहा कि भाई हम लोग हैं, और जो बच्चा छत पे चढ़ेगा वो बताएगा। तो इस तरह से देखिए, पलवार क्या है कि पलवार से आपका सॉयल के टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं। और जो ये देखिए, अब क्या है कि यदि आपने पलवार बिछाया है तो जो उत्पाद वो मिलेगा वो बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा या खराब होगा? बढ़िया मिलेगा। क्यों बढ़िया मिलेगा, बताइए क्यों मिलेगा? अब मतलब जो भी कंडीशन पहले बताए थे कि नहीं नहीं, ये देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये ऑर्गेनिक पलवार यूज किए हैं, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? कर्सर जो ये हम घुमा रहे हैं। यस बट बेल तो दिख ही रहा है ना। रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें दिख रहा है कि नहीं ये खरपतवार? यस। अब इसपे जब आपका फल होगा तो वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा या कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं, सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा ना। मान लीजिए फल बेल इस पे फैलेगी, तो अब यहाँ तो ये खरपतवार आपने बिछाया है ना, तो इसके ऊपर तो आएगा नहीं, मिट्टी के जब संपर्क में तो आएगा नहीं। तो जब मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा तो उसकी गुणवत्ता निश्चित है आपको बढ़िया होगी। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर मतलब आप एक जगह बताए थे कि जब सोइंग कर रहे थे इसका जो ट्रेंच बनाए हुए थे उस टाइम मल्च का यूज बताए थे, कैसे ट्रेंच अच्छा, बनाकर करूं। ये देखिए, देखिए दो चीज है। एक तो हमने ये मल्च बिछा है ना, काली पॉलीथीन, ये देख रहे हैं आप ना। यस सर। अब ये बीच में गड्ढा, बीच में होल देख रहे हैं कि नहीं है, हर के बीच में एकदम सेंटर में। हाँ है। तो इसी में हम लोग बीज की बुआई जो है करते हैं। और यहीं देखिए पौधा निकला भी है, थोड़ा जब इसको बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा। तो ये है ना। तो ये मल्च हम पहले ही बिछा लेते हैं,
जो प्लास्टिक मल्च है। ऑर्गेनिक मल्च तो बाद में भी बिछा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। यस सर। ये देखिए ये भी मल्च है ये। अब इसमें क्या है कि आजकल किसान क्या करता है कि यहाँ पॉलीथीन यहाँ तक बिछाएगा यहाँ तक, और अब उसमें पानी दौड़ाएगा, जगह जगह जो है हल्का हल्का छेद कर देता है। तो अब वो पानी इसके इन पौधों के जड़ों के पास ही, जहां जहां पौधे होंगे वहीं वहीं वो जो है पतले कील से छेद कर देता है। तो पूरा पानी इनमें न जाके केवल पौधों के पास ही जो है वो पानी जाता है, और बाद में इन्हीं पे मल्च का यूज कर देता है। ये जो खरपतवार या फूस या जो है धान का ये। हाँ, और पूछिए और कुछ। हो गया। नहीं नहीं, पूछ लीजिए। ये इरिगेशन जो है, इसको कौन सा इरिगेशन हम लोग कहते हैं? है ट्रेडिशनल में ही पूछ रहा है। हाँ, ट्रेडिशनल में ही है। तो मैनुअल इरिगेशन की ये घड़े से पानी लाते हैं। अभी तो यहाँ दिखा रहा है एल्युमिनियम बर्तन, बट आप और जगह देखेंगे तो इसका पानी घड़े से देते हैं। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बंद कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो और पूछ लीजिए आप लोग। क्योंकि अभी ये रिवर बेड कल्टीवेशन डे बाय डे जो इसका एरिया जो है इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे। तो आगे चलें हम लोग। यस सर। अच्छा ठीक है। देन नेक्स्ट क्रॉप है ओकरा। नेक्स्ट क्रॉप ओकरा, भिंडी। इसकी क्या विशेषता है बताइए। ये किस सीजन की वेजिटेबल है? आलोक, राहुल, यस सर। किस सीजन का क्रॉप है बताइए। आप लोग थोड़ा बोलेंगे तब हमको भी लगेगा। सर भिंडी का फसल तो मतलब इसका सोइंग अभी जस्ट जो सीजन चल रहा है इसी टाइम होता है। गुड। और दूसरा कब देखे हैं आप? और एक तो रेनी सीजन में भी देखे हैं। ठीक। अक्टूबर नवंबर में भी होता है सर। हैं? अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में। नहीं, अक्टूबर नवंबर में जहाँ प्रोटेक्ट, क्योंकि फिर उस समय झाड़ा इतना आता है कि फ्लावर इसके निकलते नहीं। थोड़ा जब क्लाइमेट हॉट होती है तो इसमें फ्लावर हैं। खरीफ सीजन से एक तो देखिए अभी क्या है कि अभी खेतों में बहुत बड़ी बड़ी फूल आने लगा, इसको जनवरी लास्ट में लगाते हैं। और दूसरी जो मुख्य क्रॉप है वह जुलाई जून के लास्ट में लगाते हैं, और अक्टूबर में तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई संरक्षित प्रोटेक्ट कंडीशन होता है, तब हम लोग इसको लगाते हैं। तो okra is important vegetable crop which grown in summer and rainy season throughout India. It is rich in vitamin, calcium, potassium and other minerals.
द रूट एंड स्टेम आर यूज फॉर क्लियरिंग। हाँ, जहाँ पर खांडसारी उद्योग या चीनी उद्योग है वहाँ इनकी जड़ों को, ये जो उसका कलर है उसको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। So the root and stem are used for clarification of sugar juice before it's converted into jaggery and brown sugar. The medicinal properties of okra are associated with gastro urinary disorder and chronic dysentery. Okra is grown for its green, tender and nutritive fruit, which are used for canning and frozen, despite the use as vegetable. It is nutritive value per 100 gram of feedable portion of okra. Moisture. अब आप इसमें देखेंगे कि प्रोटीन भी है, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद फाइबर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में आपका ग्वाइंटर डिजीज किसके कमी से होता है? कौन सा डिजीज सर? घेंघा रोग जो होता है, ग्वाइंटर रोग, ग्वाइटर आयोडीन के लैक में होता है। पर्याप्त सफिशिएंट अमाउंट आयोडीन इसमें होता है, ठीक है ना। तो इसलिए नियमित सेवन हमको ओकरा का करना चाहिए। 10 वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी हैं, तो ये हम स्लाइड आपको देंगे, अभी बस केवल हल्का बताते हैं। जैसे पूसा सावनी, ये बड़ी पुरानी वैरायटी है, बहुत पुरानी, और इंडिया की नंबर 1 की वैरायटी थी ये पूसा सावनी। इसमें आप लोग खेत, ओकरा का खेत देखे हैं कि नहीं, ये बताइए। देखे हैं सर? देखे हैं। उसमें बरसात में आप देखे होंगे कभी कभी पीले रंग का इक्का दुक्का पौधा दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? नहीं ध्यान दिया, खेती नहीं देखी। खेती नहीं देखे हो तो पौधा कहाँ देखेंगे, हैं? चलिए ठीक है। तो जो खेत होता है उसमें आपका ये पीले रंग के हो जाते हैं, तो यही जो है इसको कहते हैं एलोवेन मोजैक वायरस। एलोवेन मोजैक वायरस को आप यूँ कह लो कि भिंडी का एक अलार्मिंग है। इसकी वजह से कभी कभी पूरे क्षेत्र की ओकरा की फसल खत्म हो जाती है, ये पूसा सावनी की वजह से। तो उसके प्रति ये अवरोधी किस्म है, रेजिस्टेंट है। देन परभनी क्रांति, परभनी क्रांति भी जो है कि ये एलोवेन मोजैक जो भिंडी का पित्त सिरा रोग है उसके प्रति अवरोधी किस्म है। देन हरभजन, हरभजन भिंडी की एक बहुत अच्छी प्रजाति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ओकरा के ब्रीडर थे, प्रजनक थे, डॉक्टर हरभजन सिंह, उनके नाम पर एक वैरायटी निकाली गई हरभजन। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। पंजाब पद्मिनी और पूसा मखमली, वर्षा उपहार। हाँ सर, हाँ सर ये जो आप बताएं सर, पीला जो हो जाता है सर पूसा सावनी का, तो इसका उपाय क्या है? आगे आपको बताएंगे, है अभी ना रोग प्लांट प्रोटेक्शन, अभी फोटो भी दिखाएंगे, उसमें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। आगे भी है, बस अभी दिमाग में इतना रखिए। सर मूंग में भी तो वही बीमारी हो जाता है सर? बस 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 एकदम सही आपने पकड़ा। मूंग में वही होता है। आपका ये जो लोबिया होता है ना, बोड़ा बरबट्टी, यस उसमें भी, हाँ यस सर, उसमें भी होता है। तो अभी दिमाग में रखिए, आगे फोटो वगैरह सब है। दैन अर्का, नामिका अर्का है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। आप लोग ये सब थोड़ा सा
याद कर लीजिएगा। केवल वैरायटी का नाम, ये तो चूंकि हम पढ़ाते हैं, जो करेक्टर हैं स्लाइड दे देंगे आप लोग को, कभी काम ही आएगा थोड़ा सा। फिर देखिए जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से ये आपका काशी भैरव, काशी महिमा, काशी मोहिनी, काशी मंगली, काशी विभूति, बहुत सी वैरायटी निकली है। लीला है, लालिमा ये है, और काशी सृष्टि है एक, ये अपन हाइब्रिड है। काशी लालिमा है, काशी चमन है, तमाम सातधारी। एक चीज ये बताइए कि भिंडी के फल पर कितनी धारियां उभार होते हैं? बोलिए। 5 या 6। 5 और 5 होते हैं जनरली। यह देखिए एक काशी सातधारी है, इसका मतलब क्या हुआ? कितने धारियां होंगी? नहीं समझ सर क्या बोल रहे हैं। आपने भिंडी देखा है फल ना? यस इसके कितने उभार होते हैं? वही 5 या 6। 5 या 6। उसी प्रकार से एक ऐसी भी प्रजाति है जिससे 7 उभार होते हैं, ठीक है ना? ये देखिए 7 रीज, 7 उभार, ये जो हमने अभी रेड कलर से किया है। तो उस प्रजाति का नाम काशी सातधारी है। देन काशी विभूति, काशी मंगली, सो मेनी okra variety are available at Indian Institute of Vegetable Research वाराणसी। तो आप देखेंगे बहुत सी ऐसी प्रजाति हैं। काशी मोहिनी है, ये देखिए एक नई वैरायटी आई है अर्का निकिता। तो अर्का की आपको 3 वैरायटी हो गई, अर्का निकिता, अर्का अनामिका, अर्का अभय। Then soil and climate. Natural to slightly alkaline soil are ideally suited for okra cultivation. It does not perform in sandy or clay soil. मतलब कि यह सैंडी और क्ले सॉइल में अच्छी उपज नहीं देती है। Soil should be rich in fertility and well drained facilities. मतलब मिट्टी जो इसकी खेती के लिए है उसमें पर्याप्त उर्वरता होनी चाहिए और जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह जो खेत हम लोग ओकरा के लिए ले रहे हैं वह जल जमाव से, वाटर लॉगिंग सिचुएशन से न हो। द सॉयल शुड बी अच्छा ठीक। और इसकी खेत की तैयारी के लिए एक गर्मी की जुताई करते हैं और 2-3 ये करते हैं, उसको कल्टीवेटर से करते हैं। ओकरा बीइंग ए वार्म सीजन क्रॉप, यह एक गर्मी वाली फसल है जो कि पाला से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, फ्रॉस्ट से। द बेस्ट सीड जर्मिनेशन एट टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फेल बिटवीन 17 से नीचे जाता है तो टेम्परेचर जो जाता है तो उसका अंकुरण नहीं होता है। द क्रॉप थ्राइव बेस्ट ड्यूरिंग वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। इट मीन्स कि वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट में जो क्रॉप जो है बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। यदि 40 अप टू मैक्सिमम टेम्परेचर गोज अप टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड, सो द फ्लावर ड्रॉप और अकर, मतलब फल का गिरना पाया जाता है। देन सोइंग टाइम इन साउथ इंडिया इट इज पॉसिबल टू ग्रो होल द ईयर, बट दक्षिण भारत में पूरे साल उगाई जाती है। बट अर्ली स्प्रिंग
and autumn are the main cropping season. ठीक है. The central and northern plain, two crops, spring, summer and rainy season are frequent. The farmer is sown the seeds in February, March and later in June, July. दो सीजन क्रॉप हैं नॉर्थ इंडिया में, फरवरी मार्च और जून जुलाई, जबकि साउथ इंडिया में इस साल भर उगाई जाती है। और हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी क्रॉप मई जून में हम लोग लेते हैं। देन सीड रेट, अब सीड रेट वेरी करता है कि आप किस सीजन में क्रॉप लगा रहे हैं। यदि रेनी सीजन में लगा रहे हैं तो 8 to 10 मतलब जनरली 10 kg रिक्वायर होता है, और स्प्रिंग समर में लगा रहे हैं जनवरी में तो करीब 15 से 20 kg सीड की आवश्यकता होती है। जनरली यह पूछ लिया जाता है कि जो ओकरा की क्रॉप हम लोग जनवरी में लेते हैं उसका सीड रेट क्यों हाई होता है, तो आपके पास आंसर यह होगा ड्यू टू the seeds are germinate at 25 degree centigrade temperature, but in the month of January last in India the temperature goes below 20 degree centigrade, वह जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, इसलिए जर्मिनेशन नहीं होता है, और जब जर्मिनेशन नहीं होगा तो निश्चित है कि सीड रेट हाई होगी। देन मेथड ऑफ सोइंग एंड स्पेसिंग, तो हम लोग जनरली इंडिया में लाइन स्पेसिंग लाइन सोइंग मेथड का यूज करते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी करीब 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर रखते हैं। द रीजेज छोड़िए, हाँ, स्पेसिंग 45 to 60 एंड 25 to 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं। फॉर कॉमर्शियल और लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन सीड रेट हैज टू बी इंक्रीज 10 to 15 kg। इरिगेशन इन स्प्रिंग समर क्रॉप नीड इरिगेशन आफ्टर एवरी 4 to 5 days। अभी क्या है, इस सीजन में आपको 4 से 5 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इन रेनी सीजन क्रॉप डिपेंड अपॉन द रेन एंड फील्ड मॉइस्चर। ठीक है, वो मॉइस्चर और मृदा के नमी के ऊपर निर्भर करता है। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन द सीजन, climatic condition and soil fertility. However, in general 20 to 30 ton means 200 to 300 quintal per hectare well rotten FYM, 100 kg nitrogen, 60 kg phosphorus and 50 kg P2O5 per hectare are sufficient for 1 hectare area. FYM should be thoroughly applied in the soil at the time of field preparation। जो गोबर की खाद होती है उसको जब हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय ठीक प्रकार से खेत में बिखेर कर देना चाहिए और उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। द कंप्लीट डोज ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर मतलब फास्फोरस एंड पोटाश एंड 1/3 डोज ऑफ नाइट्रोजन और 1/3 नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ लास्ट प्लाविंग। ठीक है, अंतिम जुताई के समय हम लोग जो है खेत में डालते हैं। द रिमेनिंग डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन 2 split doses as the form of crop dressing। वही जो हम लोग खेत बोने के बाद प्रथम 25-30 दिन बाद खड़ी फसल में देते हैं और उसी समय निकाई गुड़ाई करते हैं,
खाद डाल के मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो यही टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। द फर्स्ट टू बी टॉप ड्रेस्ड 1 मंथ, वही जो मैंने बताया था, और दूसरा जो है 2 मंथ बुआई के बाद, या पहले टॉप ड्रेसिंग के 1 महीने बाद जो है दूसरी टॉप ड्रेसिंग करते हैं। वीड कंट्रोल, स्प्रिंग क्रॉप में नीड 2 to 3 वीडिंग, मतलब 2 से 3 वीडिंग की आवश्यकता होती है, एंड होइंग, बट द रेनी सीजन क्रॉप नीड फ्रीक्वेंट वीडिंग। ठीक है, रेनी सीजन क्रॉप जो है उसको रेगुलर जो है खरपतवार निकालने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि प्री प्लांट एप्लीकेशन ऑफ फ्लोक्लोरालिन, लिख लीजिएगा फ्लोक्लोरालिन क्या है, ये खरपतवार नाशी है। एट द रेट ऑफ 0.5 to 1 kg पर हेक्टेयर 4 days before the sowing of seed, or alaclose at the rate of 1 to 2 kg per hectare at 1 days after sowing have been recommended to check the weed. The weedicide treated field require 1 weeding at 60 days. यदि हमने खेत को वीडिसाइड जो रासायनिक खरपतवार नाशी है उससे यदि ट्रीट किया है तो कम से कम हम 60 दिन तक खेत को वीड फ्री रख सकते हैं। हार्वेस्टिंग, इट टेक 6 to 7 days फ्रॉम फ्लावरिंग टू पीकिंग। अब जनरली जो है रेनी सीजन में 40 दिन बाद फूल आने लगते हैं, और समर सीजन में थोड़ा सा लेट हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है फूल आने में, नहीं टाइम कम लेता है। It takes 6 to 7 days from flowering to picking of fruit. Generally, the consumer prefer small tender fruit with 5 to 7.5 centimeter long. Harvesting should be done in every alternate day. एक दिन अंतराल पे हम लोग सिंचाई हार्वेस्टिंग करते हैं। Frequent picking in okra promotes fruit development, hence enhance yield. यदि हम निश्चित अंतराल पे सिंचाई करते रहते हैं तो वो क्या है कि जो नंबर ऑफ पिकिंग, जो नंबर ऑफ तुड़ाई होती है उसको जो है यह बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। Then yield. On an average, green fruit yield of okra vary from 60 to 65 क्विंटल पर हेक्टेयर इन स्प्रिंग समर। गर्मी में थोड़ा कम होता है और रेनी में ज़्यादा होता है। अभी जो वैरायटी आ गई है वो 200 सवा 200 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड जो है दे रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर सीड जर्मिनेशन। इन रेनी सीजन नो एनी प्रॉब्लम ऑफ सीड जर्मिनेशन। बरसात की फसल में किसी प्रकार के बीज जमाव की समस्या नहीं होती है, बट जो समर स्प्रिंग क्रॉप होता है जो जनवरी लास्ट में लगाते हैं उसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जमाव जो है बहुत पुअर होता है, इसीलिए सीड ज़्यादा लगता है। इसको क्या करते हैं ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि सीड सोक इन द फ्रेश वाटर फॉर 24 आवर एंड इन hot hour 30 minutes for to improve the seed germination. Tie the water soft seed in a piece of cloth. मर्किन क्लॉथ में भिगोए हुए सीड को ले लेते हैं और या गाय की गोबर का जो ढेर होता है उसमें हम उसको डाल देते हैं 24 घंटे के लिए, या भूसे का जो घर में हम लोग के ढेर है उसमें डाल देते हैं करीब 48 घंटे के लिए, या जो हम लोग जहाँ खाना बनाते हैं गांव में जो चूल्हा होता है, खाना बनाने के बाद जब राख
ठंडी हो जाती है तो उस जमीन पर उस चूल्हे के ऊपर अगल बगल नीचे पूरा उसको फैला देते हैं ताकि इतना टेम्परेचर रहता है और वही इन्हांस कर देता है इसके सीड जर्मिनेशन को। ये देखिए प्लांट प्रोटेक्शन मतलब पौध सुरक्षा उपाय। तो इसमें स्पॉटेड वॉल वार्म नाम का एक कीट लगता है और यह जो है फल को छेद कर देता है। इनिशियली सूट में रहता है, इसके तने में देखिए ये तने में भी जो है यहाँ पर ये पूरा खत्म कर देता है, ये फल में भी है। और इसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है साइपरमेथ्रिन और कार्बेरिल 0.2 और साइपरमेथ्रिन 0.5% अंतराल पे 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करते हैं। इसमें जैसिड एक जिसको हरा फुदका हम लोग कहते हैं हिंदी में, हरा फुदका जैसिड को है। यह जो है पत्तियों के निचले सतह पे, देखिए पत्तियों के निचले सतह पे इसका आक्रमण होता है। यह क्या करता है कि पत्तियों का रस सूख जाता है, इसमें पत्तियां जो है हल्के पीले रंग की हो जाती हैं और कप नुमा शेप में, क्योंकि नीचे से करता तो जैसे जैसे वो चूसेगा उसका रस तो पत्तियां सिकुड़ सिकुड़ के मतलब इकट्ठी हो गोल शेप ले लेती हैं। इसके लिए मैलाथियान 0.1% का डाइमेथोइड 0.3% स्टार्टिंग फ्रॉम द अटैक, जब से इसका आक्रमण होता है उसके बाद हमें जो है इसको लगाना चाहिए। देन स्पाइडर माइट ये गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। माइट लाल रंग का होता है। ये भी जो पूरा क्या है कि सक द सैप फ्रॉम द टेंडर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जो पौधों के कोमल भाग होते हैं उनके रस चूस लेते हैं और पत्तियां पूरे जाले नुमा हो जाती हैं। आप कभी कभी देखिएगा, इसीलिए कहा गया है कि गर्मी की फसल में कभी भी नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर नमी उसमें बनी रहनी चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए वही मैलाथियान 0.1% और डाइमेथोइड 0.03% का छिड़काव जो है करते रहना चाहिए। देन व्हाइट फ्लाई, ये देखिए इस तरह की संरचना आप लोग खेत में देखे हैं कि नहीं? ये जो पत्ता सफेद और पीला टाइप का देखे हैं आप लोग? यस सर। यही जो है YVMB है, येलो वैन मोजैक वायरस डिजीज, यही सिम्टम है उसका। ये सफेद मक्खी के द्वारा बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे तक पहुंचता है। ये सफेद मक्खी है, देखिए पत्ती के निचले सतह पे। कभी भी आपको सफेद मक्खी देखना हो, ऊपर नहीं दिखाई दे, लेकिन इसी पत्ते के आप नीचे देखेंगे तो ये सफेद मक्खी दिखाई देगी। ये भयानक ओकरा का सबसे डेंजरस आपका ये रोग है जो कि सफेद मक्खी से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान 1% और डाइमेथोइड और कार्बेरिल इसका जो है प्रयोग करना चाहिए हम लोग। नीमेटोड्स जो कि सूत्रकृमि कहते हैं, देखिए गांठों में इसके लक्षण इस तरह से होता है। द नॉट्स कैन बी सीन ऑन द रूट ऑफ इंफेक्टेड प्लांट, द लीव्स टर्न टू पेल एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट रिस्ट्रिक्टेड। इसकी प्लांट जब यह लग जाता है तो ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या रुक जाती है। द सिम्टम्स अपीयर इन पैचेज एंड फ्रूटिंग एज रिड्यूस। इसके जो फल उत्पादन है मतलब फल जो है वह कम हो जाता है और सिम्टम जो है पैच में दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि डीप प्लाविंग ऑफ द फील्ड ड्यूरिंग समर टू एक्सपोज ऑफ सॉइल टू सन, फॉलो क्रॉप रोटेशन विथ राइस, wheat, oat and nematode infected soil, mix carbofuran 3G at the rate of 25 kg per hectare in the soil, apply nemagon at the rate of
25 liter per hectare with irrigation. Then disease, fungal disease, damping off हमने बताया जनरली इनिशियल स्टेज में जब पौधा एकदम जर्मिनेट करता है उस अवस्था में लगता है और इसके कॉलर रीजन पर आप ये देखिए यहीं से राटिंग होता है, पूरा पौधा सूख जाता है, गिर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मैंने बताया था कि बीज और मिट्टी दोनों को कैप्टॉन और थीरम एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर केजी से जो है ट्रीट हमें करना चाहिए। देन पाउडरी मिल्ड्यू। व्हाट इज द पाउडरी मिल्ड्यू? white flowery growth of fungus appear on the both surface of the leaf. आप देखिए जब कभी पत्ते पर तो इस तरह के सफेद रंग के पाउडर से, और जब हाथ से टच करेंगे तो आपके हाथ पर इस सफेद रंग का पाउडर जो है लग जाता है। ये देखिए हल्का हल्का हो रहा, बाद में पूरा इस तरह का हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए जो सल्फर डस्ट आता है, सल्फर डस्ट एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर स्प्रे एट मॉर्निंग आवर। अदर देन सल्फर स्प्रे द कैराथिन एट द रेट ऑफ 0.2% एट 15 days इंटरवल। भाई साहब क्लास ले रहे हैं, बस अभी कर रहे हैं 15 मिनट में। नहीं तो हम अरे अभी कर रहे हैं आपको फोन। फ्यूजेरियम विल्ट। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइंग ऑफ लीव्स following the wilting and rolling. The affected plants remain stunted. Dark streaks can be seen in the vascular bundle of stem and root. ये जो है देखिए क्या होता है, विल्टिंग में पूरा पौधा जो है इस तरह से सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए जो है रेनी सीजन में इसकी ज़्यादा प्रिवलेंस होती है। Adopt crop rotation, give deep summer plowing during summer to expose the soil to sunburn, seed treatment with serum or Captan at the rate of 3 gram per kg seed. Leaf blight, small brown to cookie black irregular spots appear on the both surface of leaf. The infection may be result in premature defoliation. The older spots may be collapsed. ये इस तरह का भी आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे भिंडी में, ये इस तरह का, ठीक है ना? यस सर। हाँ ये तो ये ब्लाइट का सिम्टम है जनरली। कभी कभी जब ये देखिए होता क्या है कि ये तो गिर जाता है फूल, जब फल से नहीं गिरता है तो उन फलों में आता है। तो हो सके तो जब फल इस तरह से दिखाई दे बस इसको नोच के जो है पकड़ के इसको बाहर कर देना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए जो है बाविस्टिन 0.2% और डाइथेनम 45 0.2% 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करते रहना चाहिए। देन येलो वैन मोज़ेक वायरस, ये वही हमने रोग बताया कि इसमें जो है ये सफ़ेद मक्खी से फैलता है और उसका जैसे उसमें हमने बताया था कि वही है ये अर्का नामिका अर्का है, वर्षा उपहार, ये सब रेजिस्टेंट वैरायटी है जिस पूसा सावनी, इनको हमको लगाना चाहिए। ये देखिए ये पूरा उसी का सिम्टम ये इस तरह का आप लोग को दिखाई देगा। देन एक भयंकर आजकल नया रोग आया है ELCV, इनिशन लीफ कर्ल वायरस, an emerging serious constraint for okra production in India. OLCV was earlier reported in Haryana, Gujarat and Karnataka. The disease incidence was 5 to 74% in the surveyed region. Small pinhead outgrowth, incision on
the under surface of leaf appear and leaves curling. The small pin out growth initiation. हाँ, एंड एडेक्सियल डायरेक्शन मतलब कि जिग जैक वे में जो है। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द डिजीज आर ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ लीफ petiole. The virus is also transmitted by whitefly. Rug out the diseased plant and burn them. Spray the crop with malathion at the rate of 0.1% or dimethoid 0.5% to effective control of whitefly. ये देखिए, इसमें क्या है कि बड़े आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग के नसों में खून का थक्का जम जाता है, उसी तरह से आप ये देख रहे हैं कि पत्तियों में एक क्लोरोफिल जम गया है। ये जो है, जब इसको सूर्य की रोशनी में ऐसे लीफ को करते हैं और इस तरह की ट्विस्टिंग होती है लीफ में, इस तरह की पत्तियां जो हैं मुड़ जाती हैं। ये इस तरह की पत्तियां इसमें मुड़ जाती हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग को निकाल के डैमेज कर देना चाहिए और मैलाथियन या डाइफेनम 45 मैलाथियन डाइमेथोएट 0.05% का छिड़काव करना चाहिए। ये देखिए, पत्तियां इसमें नसें भी मोटी हो जाती हैं। ये इस तरह का आप खेत में जाएंगे तो एकदम क्लियर कट ये, यदि इस तरह की पत्तियां मुड़ी हो, बरसात के सीजन में ज्यादा दिखता है। ये दोनों रोग जो YVMB है और ELCV दोनों बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा इस खेत में दिखता है। ठीक, और अब बताइए, कुछ पूछना हो तो बताइए आप लोग। बताइए। हाँ, बोलिए। हेलो, यस सर। अब भाई बोलिए आप लोग। हाँ, आ गया सर। बताइए। अब हमारा काम खत्म, अब आप लोग बोलिए। सर, जो पीपीटी को एक बार पढ़ेंगे उसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम आउट कर पाएंगे इसमें। तो पढ़ के आप लोग को अभी कितना खत्म हो गया, अब तो कुछ आउट करिए तभी ना हम समझेंगे। सर, आपसे सेंड ही नहीं किए थे, बोले थे कि हम मेल कर देंगे। अरे यार, हम नहीं कर पाते। कोई बनारस में नहीं रहता है? रहते तो हैं, 2-3-4 लोग रहते हैं। कौन कौन रहता है बताओ? अभी तो फिलहाल कहीं गोली में सर। आप लोग के इस कोर्स में कोई बनारस का लड़का नहीं है जो यहाँ रेगुलर रहता हो? है सर। कौन है? श्रवण है सर। रमन? श्रवण। हाँ सर। श्रवण।